السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں کلاسیکل موسیقی کے استاد، ان کے استاد اور چند فوک سنگرز۔ ہم معافی چاہتے ہیں جنید میاں، آج آپ نے اس سے بھی بڑی زیادتی کر ڈالی۔ کیا ہو گیا؟ بھائی پچھلی دفعہ ہم نے آپ کا یہ کالو توڑی والا برداشت کیا، آج ان کے ساتھ کوئی پسوڑی والا بھی آ گیا ہے۔ حضور والا استاد مکرم، ان لوگوں کا پاکستان کے دیہی علاقوں میں بہت نام ہے، ڈنکا بجتا ہے ان کا۔ ہمیں کیا بتاتے ہیں دیہی علاقے، ہمیں کیا بتاتے ہیں بھائی؟ ہمارے استاد محترم اللہ کے فضل سے دیہی علاقے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، گھر بیٹھے ہی اتنا دہی کھا جاتے ہیں۔ کون سا دیہی علاقہ سناتی ہیں آپ ہمیں؟ ان کا اگر دیہی علاقوں میں ڈنکا بجتا ہے تو خان صاحب کو پولیس نے تھانے میں لے جا کے ڈنکا بجایا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ وہ تھانے میں یہ تو پھر جرائم پیشہ آدمی ہے۔ خبردار ایسی بات نہ کیجئے، شریف آدمی ہے ہمارے استاد محترم۔ پھر تھانے میں کس چکر میں؟ اصل میں خان صاحب اپنی چھت میں سوئے ہوئے تھے۔ ہاں جی، تھلے کوئی ساؤنڈ نہیں دینا۔ بکواس نہیں کرو، تھلے جگہ کم ہوتی ہے، اینا واسطے پھر اوپر کھلی چھت میں سوتے ہیں، اور جب دہی کھا کے سوتے ہیں تو پھر ہوش میں نہیں رہتے۔ تو پاسا پلٹا ہے تو نیچے گلی کی طرف گرے ہیں، ہمسایوں کا گلی میں بکرا بندھا ہوا تھا، اس کے اوپر گرے ہیں، تو عید سے 2 دن پہلے ہی بکرا قربان ہو گیا، بکرے کا باقاعدہ سٹیکر بن گیا۔ وہ بکرا وابڈا کے کیسٹیو کا تھا، اس بدبخت نے خان صاحب پہ پرچہ بھی کٹوا دیا اور خان صاحب کا میٹر بھی کٹوا دیا۔ پرچہ کٹ جانے کا مجھے کوئی دکھ نہیں، میٹر کٹ جانے کا مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ جون جولائی کا مہینہ تھا۔ دیکھو ظالم نے پرچہ کٹواتا، میٹر کٹواتا، وال نہیں کٹوائے۔ بکواس نہ کیجئے، ہمارے استاد محترم کی شان میں ایسے الفاظ ہم برداشت نہیں کرتے۔ بال تو خان صاحب فن کی وجہ سے نہیں کٹواتے۔ فن کے بالوں سے کیا تعلق ہے استاد جی؟ اور سر باڑا غزلہ پھنس گیا انہاں دیاں۔ یہ کالو توڑی والا اور یہ پسوڑی والا یہ شوخی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ فساد ہو جائے گا جنید میاں۔ اور خان جی تسی اپنی والی غصہ کر دے ہو، اور خان جی تسی بھی تو میرے شگرد نو پسوڑی کہن دے ہو، اینا نام دا برکت مٹھا۔ کہاں سے مٹھا؟ وہ تو شکل سے ہی کڑوا لگ رہا ہے۔ میں اتھوں بگا کے چمٹا مارنا منہ یہ سے۔ دیکھیے ہمارے استاد محترم کو چمٹا مار رہے ہیں۔ تو وہ استاد محترم کو نہیں، آپ کو مار رہے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جب ایک مارنے کے لیے چیز ہے تو اسے چھوڑ کے ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ بہت شوقے ہو، بہت شوقے ہو تم۔ آپ کیسے شاگرد ہیں؟ استاد کو چمٹا مروا رہے ہیں۔ بھائی خان صاحب کہاں سے گلوکار ہے؟ خان صاحب تو بڑے آدمی ہیں، ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ آپ لوگ اپنے استاد کی اپنے باپ سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ عزت تو کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، چمٹا مروا رہے ہیں آپ۔ نہیں تو وہ اب چمٹا لے ہی آئے ہیں تو اب ان کو خالی ہاتھ تو نہیں جانے دینا۔ اور خان صاحب ہو کے لڑنے آ چمٹا لے کے، اور کس لیے لے ہیں یہ لوہے کا اوزار؟ اب فنکار ہے نالے پنڈ دا چودھری ہے، اچھا 20 مربع زمین باؤ جی انہاں دی، وہ تیرے پیو نو باڑیاں کردیاں سپ لڑیا، تے پھر دل برداشتہ ہو کے اس میدان چ آ گیا۔ ایویں نہیں سپ لڑیا، 2-3 گھنٹے مقابلہ ہویا، پھر کتے جا کے انہیں ڈنگ ماریا میرے پیو نو۔ وہ 2 گھنٹے مقابلہ سپ سی کہ عامر باکسر سی؟ 7ویں راؤنڈ چ جا کے پھر یہ ابا جی ناک آؤٹ ہو گئے۔ مینوں لگدا میں کلا آ دوویں میرے لال نہیں آ۔ دیکھو یہ کوئی ایسی شوخی نہیں ہے کہ سانپ نے جا کے کھیتوں میں آپ کے ابا جی کو ڈنگ مار لیا۔ یہ کوئی ایسی بڑھیا بات نہیں ہے، کوئی ایسی شوخی نہیں ہے۔ خان صاحب کو سانپ نے گھر آ کے ڈنگ مارا ہے، اس نے کہا آپ گھر بیٹھیے میں خود آتا ہوں، اور خان صاحب نے بھی خوشی سے آرام سے ڈنگ مروا لیا، چونکہ ان دنوں ایک ڈنگ کی روٹی نہیں تھی خان صاحب کے پاس۔ انہوں نے کہا چلو یہی ڈنگ صحیح، تو اس نے مارا پھر ڈنگ۔ تو خان صاحب مرے نہیں پھر؟ نہیں بس 1.5-2 گھنٹے غنودگی رہی ہے، پھر اٹھ کے چل پڑے خان صاحب۔ وہ سب بیچارہ ادھر ہی حیرانگی سے فن پھیلائے کھڑا رہ گیا، اور خان صاحب اللہ کے فضل سے آج تک فن پھیلا رہے ہیں۔ وہ کیڑا فن پھلان دے ہو باؤ جی؟ گانا تو کدی سنیا نہیں انہاں دا۔
उस्ताद जी ये बात तो सच है, मेरे दिल में भी है कि इन लोगों को जुमा 8 दिन हुए हैं ये चिमटा और ढोल की पकड़े, इनके 20 गाने मशहूर हो चुके हैं। आप लोगों को 70 80 साल हो गए हैं ये सब कुछ किए, मैंने आज तक आपसे एक गाना क्या एक बोल नहीं सुना। आइए भाई, ये ना करें, ये ना करें। बहुत शुक्रिया भाई, जवाब देना। हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई है। आप वो कल के छोकरे हैं उनके सामने आप इतने बड़े फनकारों की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया। बैठो तो सही ना प्लीज, ऐसे ना करें। ये कोई बात है पूछने वाली या करने वाली कि एक गाना नहीं है। आपको ऐसी शख्सियत कहीं और नजर आएगी। सवै चिड़िया कर दे। ये देखिए गुस्ताख, ये देखिए यानी खान साहब को दरियाई घोड़ा पेंट कर रहा है। देखिए उन्होंने दरियाई घोड़े का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने तो चिड़ियाघर कहा है। हम बेवकूफ तो नहीं है ना, उन्होंने नाम नहीं लिया तो वो लगते तो है ना। हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। कार आटा छट के है। कुछ थोड़ी सी आप लोगों को शर्म हया होनी चाहिए। हिंदो पाक में ऐसा दूसरा कोई फनकार नहीं जैसा खान साहब है। और आप लोग अपनी बदतमीजी से उनको सदमा पहुंचा रहे हैं। हाँ यार, पहले ही सदमे च ने, रंडवे हो गए ने। चंद दिन पहले अखबार च पढ़िया नहीं, चिड़िया घर में सूजी मर गई। ये क्या बकवास है, सूजी का इनके साथ क्या ताल्लुक है? सूजी से याद आया जुनेद मियां, थोड़ा सा सूजी का हलवा मिल जाए। थोड़ा सा सूजी के थोड़ा। जी हाँ, ये खान साहब के लिए थोड़ा इतना ही होता है। खान साहब तो अल्लाह के फजल से वो शख्सियत है जिनकी वजह से लोगों ने मोहल्ले में न्याज देना बंद कर दिया है। अरे यार, अपनी तारीफें ही ना करते जाए। जिस मकसद के लिए आपको दावत दी है वो तो पूरा करें, कुछ सुनाए तो सही। आप पहले सुना दें, आप सुना दें। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। चले सुनाए। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ, ਹਾਲਾਂ ਘੋੜੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ये देखिए, ये तो जुल्म है, ये तो जुल्म है। भूखी घोड़ी पे बैठ के मिर्जा चला गया है। वो क्या बुजुर्गों ने कहा कि भूखी घोड़ी लाल लगाओ, यानी भूखी घोड़ी पे मिर्जे को भेज रहे हैं। ये तो सीधा सीधा इन सदादे बेरहमी हैवानात का केस बनता है। क्या हो गया जी? इरशाद सुनाए। और खास ਸਾਹਿਬ, जो ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ। यानी खाना जुर्म कहाँ से हो गया? जी सुनाए आप। ਲਓ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੀਏ ਬੇਰੀ, ਏ ਬੇਰੀ ਕਟਵਾ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੀਏ ਬੇਰੀ, ਏ ਬੇਰੀ ਕਟਵਾ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੀ। देखिए ये दूसरा केस बन रहा है। ये देखिए जरा महकमा जंगलात वालों को फोन कीजिए। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਏ ਹੋ? भाई आप दरख्त भी कटवा रहे हैं और भूखे जानवर पे मिर्जे को बिठा के भी भेज रहे हैं और हम खामोश हैं। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਏ ਨੇ। ਓਏ ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਏ ਬੇਰੀ ਕਟਵਾ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੀ, ਏ ਬੇਰੀ कटवा दे मन में। मना कीजिए। ये मुझे ये बताइए कि ये कोई गाने वाली बात है? तेरे बुए के सोनिए मेरी, ए बेरी कटवा दे मन मेरी। भाई गाना तो जरूरी है कोई, वैसे ही बेल दे के उनको बता दीजिए कि बहन मेरी ये बेरी कटवा छोड़िए। और बहन कहां से आ गई? महबूब की बात हो रही है। यानी ये महबूब को कह रही है मेरी कटवा? महबूब की वजह से तो नाक कटती है, मेरी कहां से कट गई? ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋ गई। ये देखिए कैसी मनहूस गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी खान साहब के बारे में। अब तेरे सारियां मनहूस गल्लां मेरे बारे ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। नहीं खान साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं सदके जाऊं, मैं आपको छोड़ने नहीं आया, मैं तो आपके ऊपर बैठ के आया। मेरा मतलब है कि मैं तो आपके पीछे पीछे आया हूँ।
ਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਚਿਮਟੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਆ ਸੂਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਏ ਹਾਏ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਤਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੋਈ ਏ साहब आप तो बड़े सारी बातें छोड़े, कुछ सुनाए प्लीज। चले बिछाए सफेद चादरें बिछाए ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ये देखिए कुल करवा रहे हैं। आपके ख्याल में खान साहब फौत हो गए हैं? ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ यानी आमीन। अब अच्छा अब मेरे वकीला उन्हें सिर्फ कुलों ने कहा तू मेरे कुल कराते मैनू तो लगता मैं इथों अज तबूत दे च बंद हो गया नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आप बैठे बैठे कुछ सुना दे। जी जी अभी लीजिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या कहने अभी देखिएगा तैयारी। खान साहब तो ऐसा रंग जमा देते हैं। क्या कहने लेकिन अभी कुछ हवा में नमी है ਲੈ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਹੋ ਐਡਾ ਕਾਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀਲਦ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਣੀਆਂ देखिए बदतमीजी ना कीजिए। एक मिनट सब्र करें, वो आपकी तरह हर जगह मुंह उठा के नहीं गाना गाना शुरू कर जी हाँ। देते। एक वो माहौल दरकार होता है इनके गाने के लिए, झरनों में, झीलों में, दरियाओं के भाव के साथ। क्या बात है जुनैद साहब, इन कूड़ों को क्या पता इनके गाने तो ट्रैक्टर ट्रालियों पे भी चल रहे होते और पता ही नहीं चल रहा होता कि गाना गा रहा है या ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आके चीख रहा है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਫਿਰ ਵੜਨਾ ਹੀ नहीं ਚਾਹੀਦਾ। ये देखिए आबादी में क्यों ना घुसे जी, आप हमारे उस्ताद मोहतरम को गीदड़ समझ रहे हैं। उस्ताद मोहतरम को ओ मेरे पुत्रो जेड़ी भी जुगत करनी सानू दोवां नू इकट्ठे करो आ गिद्दड़ भी दो ही करो। नहीं उस्ताद जी आपको गीदड़ कह रहे हैं। अच्छा तो मैं गीदड़ हूँ, ये आपको कह रहे हैं। आज मैं गिद्दड़ भी बन गया, सूजी भी मेरी मर गई, बाल भी मेरे कटे गए ने, कुल भी मेरे हो गए ने, स्यापा भी मेरा हो गया, थक नहीं रहा मेरा आज तबूत भी मैं बंद हो गया। मेरा ख्याल है उस्ताद मोहतरम पागल हो गए हैं। इन्हें बेहोशी वाला टीका मार दीजिए। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार कल हमारी साथी मरहुमा अदाकारा मैवी साहिबा की दूसरी बरसी थी। मैं हैरान हो रहा था कि वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। इंसान के पीछे वक्त है, आगे कब्र है। हाँ जी हाँ जी। मैं हैरान हूं कि यार कल की बात लग रही है कि इधर हमारे साथ ही वो शोज पे आया करती थी बेचारी, और अचानक पता चला जी बीमार हो गई हैं, अस्पताल दाखिल हो गई हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, फौत हो गई। और इस बात को भी 2 साल गुजर गए, बिल्कुल ही घोड़े से तेज इस वक्त दौड़ रहा है। और मेरा ख्याल है इसकी वजह यह है, जिसका हमें एहसास इसलिए नहीं हो रहा कि मसरूफियत बहुत बढ़ गई है। जिद्दत मशीनरी इतनी इन्वॉल्व हो गई है इंसान की जिंदगी में कि उसका किसी दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं रह गया। वो अल्लाह ना करे अब तो कोई फौतगी हो जाती है किसी करीबी अजीज रिश्तेदार की, मोहल्लेदार की, तो फिर एहसास होता है, या इस तरह को आपका करीबी दोस्त या साथी या रिश्तेदार उसकी को बरसी आ जाए तो याद आता है कि मौत भी है और उस तरफ दौड़ना है। हालांकि ये तो हर मुसलमान को हर वक्त मौत को याद रखना चाहिए। कब्रिस्तान में अपने अजीज प्यारों को दफना के आते हैं, कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, मौत भूल जाती है। हाँ जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इतनी तेजी से वक्त गुजर रहा है, इतनी तेजी से जिंदगी गुजर रही है। वरना मैं सोच रहा था कि चंद साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले हर इंसान जो है ना जी वो मौत को याद करता रहता था। बुजुर्गों के मुंह से अजीब अजीब फिक्रे, अजीब अजीब मुहावरे और मौत के मुतल्लक अजीब अजीब सदाएं निकलती रहती थी। अक्सर बुजुर्ग कहा करते थे जी अग्गा रह गया नेड़े ते पिछा रह गया दूर। ये बुजुर्ग अक्सर आवाज लगाते थे। अक्सर बुजुर्ग कहा करते थे कि बहुत ही लंघ गई है जी, थोड़ी रह गई है। अक्सर बुजुर्ग कहा करते थे जी अपना अब सालगिरह वगैरह पे, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। चलो चली तो मेला इत्थे बैठ किसे नहीं रहना। हाय 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 सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा। ये अक्सर घरों में, मोहल्लों में
गलियों में ये आवाजें लगाया करते थे बुजुर्ग, और आते जाते याद किया करते थे, ऐसी बातें करके मौत को याद रखते थे, जिससे मेरा ख्याल है इंसानियत इंसान के अंदर कायम रहती है। वो उसको जगाने के लिए ये लोग ऐसी बातें करते थे, मौत को याद करते रहते। हकीकत जो है जी हकीकत है, इससे बड़ी हकीकत ही कोई नहीं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये वाहिद हकीकत है जिसने आना ही आना है, जो मौत है, और उसका हम भुले हुए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जितने भी लोग चले गए हैं, मैं भी साहिबा के समेत सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और हर इंसान को इंसानियत का पाबंद रहने की तौफीक अता करे। क्या आज की पहली खबर? सऊदी अरब में ट्रंप और उनकी अहलिया को कहवा पीने का तरीका बताया गया। जाहिर है उसको क्या पता है कि अरबी कहवा कैसे पीते हैं, उनके हाथ तो ऐसे ही कोई चीज होती नहीं। मेरा ख्याल है इसने बेचारे ने ना कहवे में बर्फ डालने की कोशिश की है। ये तो शराब में बर्फ डाल के पीने वाले लोग हैं। वो फिर उधर किसी वली अहद ने सुना है पीछे तौन में मारी है उसने कहा है जो तू समझन नहीं है वो इतने नहीं, यही को पीण पूण दे दे, खबरदार। एक कहवा है। सऊदीज ने यह भी बताया कि बाएं हाथ से कोई मशरूब नहीं पीते, जिस पर फौरी तौर पर ट्रंप ने हाथ तब्दील कर लिया और दाएं हाथ से कहवा पिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया, इसको अकल सिखानी चाहिए। ये तो गरीबों का खून पीने वाला भाई है, उसको क्या पता कहवा कैसे पीते हैं। सुना है गुड़ को दंदी मार के कहता है लो जी मिठी नीम को भी आ गई जी। है नलायक आदमी है। वैसे एक और चीज मैंने नोट की है कि इसने, तुम्हें याद है ओबामा ने जब आके सऊदी अरब में मेडल पहनाया था तो इसने बड़ा मजाक उड़ाया था कि ओबामा जाके अरबियों के आगे सर झुका बैठा है मेडल के लिए। इसने खुद सर नहीं झुकाया, बड़ा खोचल है। इसने ये गोडे बेंड किए और ऐसे सीधे ही मेडल के अंदर बढ़ गया। या तो फिर इसने खोचलपना किया है, या फिर हो सकता है कि क्लबों में डांस कर करके इसकी कमर की हड्डी टूटी हुई हो, इसलिए नहीं चुक सका बेचारा। या मेरे ख्याल में कभी मेडल मिले ही नहीं। मेडल गौरी साहब इसको किस बात का मिलना है, जुआ कराने का? कायदे आजम के बारे में भी कहा जाता था ना कि वो कभी अंग्रेज के सामने उन्होंने बो नहीं किया, कभी झुके नहीं है। हिंदू लीडर्स अक्सर अंग्रेज के सामने झुकते थे। तो एक बार कायद तकरीर कर रहे थे, सामने सारे अंग्रेज भी बैठे हुए थे, तो उनका जो मोनोकुलर वो एक आंख में लगाते थे शीशा, वो नीचे गिर गया। तो सारों ने तालियां बजा दी कि अब कायदे आजम को झुकना पड़ेगा। लेकिन कायदे आजम ने बड़े इत्मीनान से जेब से दूसरा निकाला, लगाया और तकरीर जारी रखी। अरे वाह, बहुत अच्छे। कायदे आजम ऐसे ही तो नहीं, कायदे आजम हुए। हाँ जी। शेख रशीद साहब कहते हैं नवाज शरीफ के लिए वैसे है तुम्हारी को अक्ल, कायदे आजम से सीधा शेख रशीद पे आई, बीच थोड़ा सा वक्फा ही डाल लेती। अच्छा जी, खबर तो सुने, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए हर आने वाला दिन बुरा दिन है। अल्लाह ताला रहमत करे, अल्लाह पाक करम करे। शेख साहब पे तो अब मुझे तरस ही आना शुरू हो गया है। जितनी देर से ये बेचारे नवाज शरीफ की हुकूमत के दिन गिन रहे हैं, इतनी देर तक तो अमान से बड़ी फूफी भतीजे के ब्याह के दिन नहीं गिनती। देखो ना यार, 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया, रोजाना कहते हैं कि बस इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। मुझे तो लगता है बेचारे डिप्रेशन की गोलियां खानी शुरू हो गए हो। इस तरह का स्टूडेंट जाता ना पेपर देने के लिए, उसे 5 सवालों में से एक नहीं ना आता, वो जो सवाल नहीं आता उसी को करने के चक्कर में सारा वक्त गुजार देता है। यार जरा चौथा नंबर वाला सवाल है तो लाओ यार, चौथे नंबर वाला नहीं आता। यानी जो सवाल नहीं आता उसके चक्कर में सारा वक्त गुजार देते हो। जेडे 4 आउंदे ने पहले वो तो कर लिया। ऐसे स्टूडेंट पता क्या करते हैं, कमरा इम्तिहान में बैठ के साथ वाले की नकल कर रहे होते हैं, जो वो लिखता है वही लिखते जाते हैं। जब आधा पेपर हो जाता है तो मुमतहिन जो है वो दोनों को अलग अलग कर देता है। उसके बाद ऐसे तालिब इल्म जो होते हैं ना, वो लिख देते हैं इसके बाद वही पढ़ा जाए जो इमरान ने लिखा है। सीधा आगे खान भी लिख दे, इमरान खान ने लिखा। ऐसे स्टूडेंट के साथ तो कई दफा ये भी हुआ कि साथ वाले की नकल करके सारा पेपर लिख आते हैं। बाद में पता चलता है उसका माशरती इल्म का था, मेरा पेपर फिजिक्स का था। और दिल को तसल्ली ये कह के देखे कोई बात नहीं, मैंने भी 7+7 कायदे आजम के 14 ने कहा थी लिखे हैं। अच्छा जी, खबर सुने, छक्कों के बादशाह क्रिस गेल ने कहा है कि उन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी गुर्बत में गुजारी, खाना खाने और स्कूल की फीस के लिए कचरा भी उठाकर बेचा। माजी की यादों पर अश्कबार। हाय हाय हाय, बड़ी बात है। देखो ये रहा अजीम क्रिकेटर क्रिस गेल कह रहा है कि मैंने
फीस देने के लिए स्कूल की और खाना खाने के लिए कचरा तक उठाया हुआ। हाँ जी। बल्ले 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 बल्ले। यही बच्चा अगर हमारे कराची के लियारी में पैदा हो जाता तो हमें अच्छा क्रिकेटर भी मिल जाना था और कराची का कचरा भी खत्म हो जाना था। उसकी ग्रेटनेस में उसको दाद न देना। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इतराफ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा सेल्फिश भी हो रहा हूँ। और साडा कचरा कितने चुकने कराची। नहीं, कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है जी जी। ये क्रिस गेल तो कूड़ा उठाता था ना जी। ये मोबाइल उठाता था। अकल करो यार, वो शरीफ आदमी है, हमें जुगत के चक्कर में उसे बदनाम कर रहे हैं। जी सुने, दुनिया के मौमर तरीन 101 साला स्काई डाइवर ने 15,000 फुट की बुलंदी पर हवाई जहाज से छलांग लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 101 साल। हाँ जी। यार देखो अंग्रेज ईमान से कैसे फ्रेश लोग हैं। दिल होना चाहिए जवान। 101 साल का तुम 64 के ही हमें बुढ़े बन के फिरते रहे। खुश खुश फिरा कर। 101 साल के अंग्रेज डाइयां मार रहे। हमारे यहाँ तो बीवी ताने मार मार के बंदे को बुढ़ा कर देती। 40 क्रॉस कर जे बंदा बेचारा बाल बना रहा हो ना तो पीछे से शुरू हो जाएंगे। है ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋ ਉਮਰ ਬੋਦੇਵਾਨ ਦੀ। ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਦੇਵਾਨ ਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਲਏ ਨੇ। मैं तो इन तानों से बचने के लिए फेल्ट पहने रखता हूँ। अच्छा, मैं इन चीजों से माफ रहा हूँ। मैं तो जरा से ना सादा कपड़े पहनने की कोशिश करूँ ना, आपकी भाभी कहती है कि क्या होगा, शॉकिंग कलर के कपड़े पहना करें। बिल्कुल, आपने 30 साल की उम्र में 50 साल वाला रवैया अपना लिया। चलो फिर नहीं तुम्हें शर्म आती तो ले लो फिर ब्रेक। और क्या हो सकता है। नाज़रीन, क्या हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। करें जी हालात हाजरा को सुरों में बयान। बहुत शुक्रिया, हम मशकूर और ममनून हैं आपकी इस दावत पे। ओ, आप तो पक्के ही हो गए। ये कच्चे बंदे का काम ही नहीं है। जी इरशाद भाई, रमजानुल मुबारक का महीना आया चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हमारी ये बीमार पार्टी हुकूमत से कुछ गुजारिश करनी चाह रही है। जी जी। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। दीवार क्या गिरी, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान। सीमेंट की बनाते तो ना गिरती। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। पीएम पे सुई अड़ गई इमरान खान की। पंजाबीश है 15 च लबड़ी। ओ पंजाबी शे 15 च लबड़ी। रोजे चढ़ दे नाली जालिमानी अन्नी न पा दे। सोने रोजे चंगे कड़ा दे, जालिमा रोजे चंगे कड़ा दे। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। दीवार गिर गई, बाहर साइकिल खड़ी थी वो भी गिर गई। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। डोनाल्ड ट्रंप आंत है पूरी शैतान की। क्या बात है। सोने रोजे चंगे कड़ा दे, जालिमा रोजे चंगे कड़ा दे। फड़ के बह गए छुरियां के, फड़ के बह गए छुरियां टोके। मीना तस्बियां वाला बरकते दी इंजना मुका दे। सोने रोजे चंगे कड़ा दे, जालिमा रोजे चंगे कड़ा। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। बात है, लोगों ने काम पे जाना होता, क्या मजाक बनाया। अरे बार बार गिर रही है ये गरीब की बार है। क्या कह दिया उस्ताद? दीवार क्या गिरी मेरे मकान की। हालत
हालत बिगाड़ी मोदी ने हिंदुस्तान सोने रोजे चंगे कड़ा दे जालिमा रोजे चंगे कड़ा दे दही वाले ने हुण तो ही अखा दही वाले ने हुण तो ही अखा मत्थे ते चार रखियां 10 रुपए पिछे किलो बदा दे सोने रोजे चंगे कड़ा दे जालिमा रोजे चंगे कड़ा दे दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की सवारी खुद हिफाजत करे अपने सामान की क्या बात है रोजे चंगे कड़ा दे जालिमा रोजे चंगे कड़ा दे भूख परे बिकने हैं समोसे भूख भरे बिकने हैं समोसे आलू विच नहीं होने चटनी मुक गई सानू सुना दे सोने रोजे चंगे कड़ा दे जालिमा रोजे चंगे कड़ा दे दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की क्या बात घाटे में फिर से बिक गई गंदुम किसान की सोने रोजे चंगे कड़ा दे जालिमा रोजे चंगे कड़ा दे रोजों में कोई कम नहीं होना रोजों में कोई कम नहीं होना दफ्तर खाली मिलने फंसे कम ऐसे हफ्ते करा दे सोने रोजे चंगे कड़ा दे जालिमा रोजे चंगे कड़ा दे दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की ओ माय गॉड ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਸੁਕਣੇ ਪਾਈ ਸੀ इसी वजह से तो गिरी है अब मैं किसको करूं सुखियां सड़ियां संभाल खजूरा सुखिया सड़िया संभाल खजूरा सुखियां कैसे और सड़ियां कैसे पेश कर रहा हूं सुखियां कोई बाबा कोई बाबा सड़ियां कोई शक नहीं सुखियां सड़ियां संभाल खजूरा ओ सुखिया सड़िया संभाल खजूरा सोने दे पाबिकियां इन्हां दा थोड़ा रेट ही घटा दे सोने रोजे चंगे कड़ा दे ज़ालिमा साडे रोजे कड़ा दे जालिमा साडे रोजे कड़ा दे रोजे भी कड़ा दे फसे पैसे भी कड़ा दे कोई अच्छी जी कमीज भी कड़ा दे इनू घरों भी कड़ा दे सोहणिया साडे रोजे कड़ा दे सोने साडे रोजे कड़ा दे ज़ालिमा साडे रोजे कड़ा दे जालिमा साडे रोजे कड़ा दे सोहणिया साडे रोजे कड़ा दे गरीबां दा एक एक बांड भी कटा दे अच्छा भाईजान, पिक्चर्स एंड वीडियोस के सेगमेंट में सबसे पहले आपको एक अजीबो गरीब किस्म की मोटर बाइक दिखा रहा हूं। अच्छा ये देखें, बहुत अच्छे हेलो जीप से ज्यादा तगड़ी है। शाबाश लुक एट द टायर्स। ओह ओ पहाड़ों पे भी चढ़ रहा है देखते हो करता क्या क्या है ये। क्या कहने ये देखें, ये देखो, ये उतारी ये देखो सीढ़ी के तौर पे भी इस्तेमाल कर। वाह जी वाह। बहुत अच्छे मोटरसाइकिल ना हो गई मरना जोना ही हो गया सही बात है और चुक के चले हेलो दलदल में भी चिकड़ दल दल पानी
ਐਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਈ साफ भी होगी। वाह अभी देखना असल असल दिखाएगा, ये देखना। अच्छा, ये देख, ये क्या है जी? सारी खोल के रख देगा। हैं? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ कैसा है? वाह ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। टायर किते नु खान ना लपे और देखो पूरी खोल दी। जबरदस्त। अच्छा जी जैसा शाबाश। बैग में बंद कर दिए। अच्छा बैग में डाल के घर ले जाए और दिल करे बाद में जोड़ने का तरीका भूल जाए। या एक बैग मिले दूसरा मिले ना। शुक्र है ये बाइक पाकिस्तान में नहीं है, पता चले जी बाप ने खोल के रखी है और बच्चे ने आधी मोटरसाइकिल दे के पतीसा खा लिया। यार एक फायदा है इसका, क्या? सामने अगर सार्जेंट खड़ा है जी। तो मोटरसाइकिल खोल के बैठ जाए बंदा, वो पूछे भी क्या है, यार ये थ्रेचर है। या ये भी कभी सर आपका इतना प्रेशर है कि मेरा स्कूटर ही खिलर गया। अच्छा यार, इसी किस्म का करतब एक गांव में ट्रैक्टर पे भी हो रहा है, वो देखो जरा। अच्छा। देखो तो सही। ये टू व्हीलिंग, ओए होए, बहुत अच्छे, ये देखो। बहुत अच्छे। जबरदस्त। हमारे गोगा जी ने भी ये ट्राई किया था, ट्रैक्टर दरमियान में ज्यादा हो गया। यार खुदा के लिए वाह 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 वाह। अच्छा ये गांव के लोग जो होते हैं ना जी, इन्होंने अपनी ही गेमें बनाई होती हैं और ये बड़े बड़े हैरान कुन करतब करते हैं उधर। जबरदस्त देखो ना ये रहा, मुकाबला हो रहा है। उसने ट्रैक्टर की वन व्हीलिंग शुरू की हुई है और बकायदा कुमार है उसे। हाँ बड़ी जी। बात है जी। ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। इसने अपनी सांस नीचे खड़ी की हुई थी कि तुम गिनती गिनना। जब उसने कर ली इसने उसके ऊपर यार। एल और ये रहा वो देखो सिलेंसर में से जो धुआं निकल रहा है ना, वो लग रहा है ट्रैक्टर ने नशे वाला सिगरेट पिया, उसकी वजह से उसे चक्कर चढ़ गई। अच्छा यार, अगली वीडियो बड़ी मानी खेज है। पता ये चलता है कि भेड़ों को कोई भी लीड कर रहा हो, भेड़ों को नहीं पता चलता। अच्छा ये देखें, शाबाश। यानी खोते के पीछे लगी हुई है सारी भेड़ें। यार कैसी बेवकूफ है जो खोते के पीछे जा रही है। और इन सब के ज़हन में ये है कि सानू कोई खोता शॉपिंग करा देगा। अच्छा भेड़ा ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੰਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। मेरा तो ख्याल है ये गधा इन भेड़ों को लेके कसाई के पास जा रहा है और ये कसाई को बोलेगा कि वो बगैर तो साडी जान छड्डो ते भेड़ां लवो। यार एक बहुत ही क्यूट वीडियो है, देखना। अच्छा ये देखो, हेलमेट पहना हुआ हेलमेट पहना हुआ है, उसे खाया नहीं जा रहा कुछ भी। बच्चा झिला रहा है। पापा हाय हाय हाय, बहुत ही प्यारी। बहुत अच्छे। और माशाल्लाह सेहत से बच्चा लगता भी बट है। उसके लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी पनिशमेंट है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਟਮ ਦਾ ਤੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। तोड़ नहीं देना था, शीशा खा जाना था। अच्छा लेके वो जाता है मुंह की तरफ, हाँ। उसको ये एहसास नहीं ना कि तो शीशा है। हाँ। वो जब शीशे से टकरा जाती है चीज फिर उछलता है। ये असल में हेलमेट नहीं है, पनामा केस है, जिसकी वजह से हमारे वजीर जो है मजीद कुछ खा नहीं पा रहे। ओए, ओए। अच्छा यार, तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त अमेजिंग वीडियो दिखाता हूँ। एक बंदा है, बाजा बजा रहा है, सामने मुख्तलिफ मुल्कों के उसके परचम है। आप जिस परचम पे उंगली रखोगे उसी मुल्क का वो कौमी तराना बजाता है। कमाल चीज है यार। Would you play for this one? Oh yeah, Pakistan. पाकिस्तान हाय हाय हाय, कैसा है? बहुत अच्छा। जिंदा रहो इंग्लैंड दे गौरी। कितने सारे उसने पर्चे पे, तो इसका मतलब है इसको काफी मुल्कों के तराने आते हैं। सारे मुल्कों के आते हैं तराने, अपने मुल्क का नहीं आता इसको। क्या यार, ये बागी है अपने मुल्क। शाबाश। नहीं यार ऐसे ना करो, उसका फन है, उसने याद किए हैं। और ये इस तरह के जो होते हैं ना स्ट्रीट फनकार वहां पे वो अक्सर पाए जाते हैं। उन्होंने कोई ना कोई ऐसा फन सीखा होता है कि लोग उनको फिर पैसे देते हैं। भाईजान एक व्यूअर ने खास तौर पे आपकी नजर एक वीडियो की है, जरा देख लें। मेरे लिए सर्दी गर्मी लंघ जाती है
ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ वाह 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 वैसे इतना मौजूद रान मुरीद मैंने पहले नहीं कभी देखा ऐसे ही हुआ है जैसे कतील शफाई का पहला शागिर्द है अखीर निकले ये दा शागिर्द है नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।